So we have reached to Kochi airport and from here we are going to LEP. Dutch model जैसा लग रहा है थोड़ा and it takes around 3 hours to reach over there. So let's start the journey. So when you are moving to LEP, बीच में यहाँ पे आप रुक सकते हैं which is called Otupura, which means food house. And यहाँ पे आपको एकदम ट्रेडिशनल केरला का फूड मिलेगा. So we are trying some घी पोड़ी था और Thai idli. देखते हैं पिज्ज़ा डोसा. So the ambience is very simple, sweet and traditional and एकदम clean है. So you can enjoy your Keralite food over here. This is special dosa of Kerala. Let's see how. Hello gingers and chilies. We are starting our journey of LEP from today. Very beautiful cruise ride and the LEP is also called as the Venice of the East. You can see such a beautiful lake around and so many houseboats and cruises are running here. The beauty is so serene that one wish love to stay here forever. So ये हमारा cruise, as you can see, beautiful it is, of Ramada, and of course 80 people can easily be accommodated in it, and food is in the AC cabin, so most of the things are being taken care over here. So this is the cruise which is for 3 hours and it is quite expensive, 3,000 rupees per person, which includes breakfast, snacks and other facilities. Let's see. This is the food area. LEP is also called as capital of backwater, and no wonder it's so beautiful, and that's why Kerala is known as God's own country. All Devi Devtas are here. You can see so beautiful nature. So we are on a Punarmuda lake, which is just opposite to the Ramada Wood. And slowly now we are moving towards the village as well as paddy field और केरला की सबसे बड़ी लेक भी आई. So this is how the surrounding looks like. So हजारों boats are there and from each and every corner you are going to find boats are moving over here. So backwater is a natural phenomena which took place almost around 40 to 50 years. कैसे होता है वो भी आपको बाद में explain करूँगा. And this is how the full backwater looks like. काफी लंबा stretch है and 3 hours का cruise है. You can understand कि काफी area cover होने वाला है. So if you are finding कि यहाँ पे गर्म हो रहा है तो there is AC also in the middle. जो मैंने आपको दिखाया था, the lunch area. Okay, now we are entering into the Kerala's biggest lake called Vembanad. Sports Authority of India area is now being over, where you can do sports activities, kayaking and all. And this is one of the biggest lake now. So this is Kerala's biggest lake called Venaan. आप देख ही सकते हैं कितनी बड़ी है. Again, rice paddy field. This area is called Rani Chitira Martanda is the rice paddy field area around here. We just passed through the either sides of the rice paddy field. Okay. And it is completely in fresh water. On either sides vast area of rice paddy field. We have 2 times of crops a year. If the climatic condition is favored to the nature is good, we can take 3 times of crops. So both the sides fresh water is there. Fresh water. Okay. Oh, 3 times you can take the Yes, get the crop. yes. So we are here to see the rice paddies. So beautiful. Look at the stretch. Here you can see such beautiful carpet they've laid down. It's a jute carpet
It's put up so that the soil erosion doesn't happen. Otherwise, if the soil is open, either the soil will go to the rice paddy fields or it will go to the backwater. So beautiful, and it's so easy to walk also. It's like laid down the red carpet for us. So now we have entered into one more beautiful canal, as you all can see. थोड़ा और narrow हो गया है. And of course, we have taken a 360-degree round. From Ramada we started and we are going to end up at Ramada. But not a single thing is going to be repeated. So that is the beauty of this cruise. And over here, this side you can see the paddy field. It's called golden harvesting. And of course, dur tak, this is being taken care by the societies. And later on, the money is being given to the farmer. So here, देखिए background में wow, all palm trees, coconut trees are there. So it's heaven. सही नाम दिया है, God's own country, and it's heaven for everyone. Mainly Mumbaikars के लिए तो जन्नत है जन्नत. Now we are passing through the village area. यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी है, and the transportation from one part to another part is by boat only. So it's beautiful. And ये देखिए village के लोग, they are going towards their houses. Paddy field का I think काम complete हो गया है. एकदम शांति, सीरीन एंड वक्त जैसे यहाँ पे ठहर सा गया है. मस्त है, एकदम मजा आ गया. तो यहाँ पे भी बहुत सारे बर्ड्स हैं, as you all can see, comparatively different. These are called black currant. ये एक और खूबसूरत क्रूज बाजू में से जाता हुआ, एक से बढ़कर एक है. So now we are entering into the final part towards Ramada. एंड ये नैरो कैनल फाइनली अब खत्म हो रहा है. एंड छोटे छोटे बहुत सारे यहाँ पे घर है. हर घर के आजू बाजू आपको पपाया ट्री, नीम का ट्री, palm trees, so many things you are going to get. And this side people are enjoying, dance along with the music. So world class cruise actually. So much beauty is there over here. And Venice of the East जो नाम दिया है, पूरा का पूरा खराब साबित होते हुए. It looks like आप सही में जो मांगा था मन्नत वो आपकी यहाँ पे पूरी हो जाएगी. नेचर इतना खूबसूरत है, सब कुछ देने के लिए यहाँ पे बैठा हूँ. तो ये आपकी ट्रांसपोर्ट वाली बोट, and you can see over there stoppage. So some people are going to get down over here and some are going to get. That is one of the best mode of transport over here in the backwater. So this is Ramada where we are staying for 3 nights. Club Mahindra का associate member है. And view आपको मैं इस साइड से दिखा रहा हूँ. Beautiful it is. And आपका जो boat race होता है, this is also the end point called the Nehru Trophy. And काफी लोग यहाँ पे rooms लेते हैं just to see the boat race, which is around 1.5 kilometer long. So finally we are reaching to our terminal. Around 3 hours 40 minutes का ये पूरा का पूरा सफर था. One of the most memorable. First time we have done the backwater. So हमारे लिए नया भी था. And एकदम peaceful. और खाना भी मस्त था. सो एलईपी में वी आर स्टेइंग इन रमडा बाय विंदम. यहाँ पे अराउंड 120 रूम्स हैं. एंड दिस इज़ द ओनली 5-star होटल विच इज़ देयर इन एलईपी. एज वी आर क्लब महिंद्रा मेंबर्स, सो इट इज़ फ्री फॉर अस. फॉर नॉन क्लब महिंद्रा मेंबर्स इट इज़ 8,500 रुपीज़ विच इंक्लूड्स ब्रेकफास्ट. दैट इज़ प्रीमियम स्टूडियो विच इज़ फेसिंग द बैक वाटर. वो आपको मांगना पड़ेगा बिकॉज सिटी फेसिंग इज ऑल्सो देयर. चलिए अब आपको लॉबी में लेके जाओ. सो दिस इज द रिसेप्शन एरिया, काफ़ी बड़ा है. एंड ओवर हियर इन लोगों का सिग्नेचर, दैट इज़ योर
बोट रेस एज LEP इज़ फेमस फॉर. दिस इज़ द ट्रेवल डेस्क जहाँ पे पार्वती हमको हेल्प कर रही है फॉर डेली वेयर टू गो, व्हेन टू गो एंड ऑल. This is World in the Pot. There are total 4 restaurants. उसमें से एक ये है where we are going to do our breakfast and it's a multi-cuisine restaurant. One is on terrace जो मैं आपको बाद में लेके जाऊँगा. So this is the second restaurant called Pecs and Pints. It's for cocktail and more. Timings are 11 AM to 11 PM. अंदर से आपको दिखाता हूँ. This restaurant is mainly for males. It's Kerala. मैं आप अगर लेकर एरिया में आ गए हैं, the environment is going to be like this only. So ये है यहाँ पे स्विमिंग पूल एरिया एंड इसके पीछे है बैक वाटर which you already have seen from our room. And best part over here is you are going to see greenery everywhere. So Kerala is famous for that only. So this is the third, you can say the cafeteria. Total 4 hai. This is the third one where you can have your cold drinks. So this is the final restaurant called Venice, which is on the top floor, 7th floor. Let's also see the view. बाहर से कैसा दिखता है एंड सराउंडिंग्स भी देखते हैं. So what is the name of this spa? Essence Spa. Essence Spa. That is on 7th floor. 7th. So 7th floor पे Chinese restaurant is there and वहाँ से आपको ये पूरा का पूरा बैक वाटर व्यू दिखेगा क्लियर में. एंड दिस इज द सिटी व्यू. ये भी काफी खूबसूरत है. Lots of greenery. So this is the view from our room. As you can see, backwater over here. And यहाँ से एक cruise हमारा start होता है. That will start from 1 PM. And this is also called the end point of famous race over here in Kerala, जो कि boat race कही जाती है. On 2nd Saturday of August month it takes place. तो अगर आप प्लान कर रहे हैं तब भी कर सकते हैं इफ इट इज गोइंग टू बी कंफर्टेबल. एंड फ्रॉम हियर यू कैन गेट कायाकी, डिफरेंट टाइप्स ऑफ बोट्स एंड ऑल टाइप्स ऑफ टूर्स विथ रिस्पेक्ट टू बैक वाटर. यू आर गोइंग टू गेट इट. सो ये LEP का सबसे बड़ा कृष्णा टेम्पल है and it is from 15th century. So this is the first most beautiful tourist spot as well as the beautiful temple which we all have to visit. And यहाँ का जो पायसम है that everyone has to take it as a prasad. 1 बजे तक ही मिलता है and after that the temple closes in the afternoon. और पायसम के पीछे एक स्टोरी है जो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर में. ये देखिए यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत एक कुंड है जहाँ पर लोग दर्शन करने से पहले पैर धो के जा रहे हैं. सो देयर इज़ सो मच सिग्निफिकेंस ऑफ डूइंग ऑल दिस. लाइक यू आर कमिंग फ्रॉम फार, फिर आपके पैर धोते हैं तो एकदम मन शांत होता है और दर्शन भी बहुत अच्छे होते हैं इससे. सो बॉयज़ आर नॉट अलाउड टू वेयर शर्ट एंड धोती. सो पीयूष ने जैसे पहना है वैसे शर्ट पहनना है. आइदर यू गो बेयर चेस्टेड और दिस वे यू हैव टू गो. सो दैट्स द ट्रेडिशन हियर एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट ऑल द रिलीजन एंड द ट्रेडिशन आउट हियर. सो एज द वीडियोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड द टेम्पल, आपको बाहर से एक व्यू दे रहा हूँ हाउ इट लुक्स लाइक. एंड यहाँ पे जो प्रसाद है पायसम दैट यू गेट इट आफ्टर 1 PM. सो 1 बजे तक टेम्पल खुला रहता है बट 1 से 2 के बीच में आपको पायसम मिलेगा विच इज़ बीइंग कंसिडर्ड एज द पायस प्रसाद ओवर हियर. डोनेशन हो रहा है पायसम के लिए. जो भी इच्छा है आपकी वो आप डोनेट कर सकते हैं. और यहाँ जो ये है त्राजवा, आई डोंट नो व्हाट इज़ इट कॉल्ड इन हिंदी. अपने वजन के हिसाब से भी यू कैन डोनेट एंड उसका प्रसाद फिर बनता है. सो देर आर पीपल हु आर डोनेटिंग
सामग्री फॉर पायसम. सो पायसम प्रसाद जो दिया जाता है केरला में, उसका एक छोटा सा कहानी है. कृष्ण भगवान ने यहाँ के राजा के साथ एक बार चेस खेला और चेस में जीतने के बाद उन्होंने बोला मुझे कुछ भी मटेरियलिस्टिक नहीं चाहिए, आई वॉन्ट ओनली द राइस ग्रेन. और हर चेस के डब्बे में आप ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन में राइस रखोगे, तो पहले में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 4, चौथे में 8, पाँचवें में 16. एंड ये जब मल्टीप्लाई हुआ तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इट वॉज ट्रिलियन ऑफ राइस जो राजा उनको दे नहीं पाए थे. सो इट वॉज बीइंग कंसिडर्ड एज अ डब्ट. तो भगवान ने बोला कि जो भी आपके मंदिर में आएगा उनको आप प्रसाद के रूप में दीजिए. और ये गुड़ और राइस का जो आपको पायसम मिलता है, यहाँ से ये बहुत प्रसिद्ध हुआ. सो दोस्तों, ये है आर्यास. यहाँ का वेजिटेरियन फूड इज़ वाओ 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 यमी. एंड ऑफ कोर्स केरला साध्या ही खाना, और कुछ ऑर्डर देने का ज़रूरत नहीं है. इट्स यमी एंड यू आर गोइंग टू गेट द बेस्ट टेस्ट ऑफ LAP ओवर हियर. इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं, बट यहाँ पे आइए. ये है मरारी बीच, वेरी क्लीन एंड थोड़ा सा स्लोप है यहाँ पे. जो लोग भी यहाँ पे आ रहे हैं, अगर पानी के अंदर जा रहे हैं, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ. स्ट्रेच इज वेरी वेरी लॉन्ग, ऑलमोस्ट दिख तो रहा है 7 to 8 किलोमीटर्स, मे बी मोर देन दैट. एंड हम लोग यहाँ पे मस्त दोपहर में 2 बजे ठंडी हवा ले रहे हैं. ऐसा लग रहा था गर्म हवा आएगी, बट मस्त ठंडी हवा आ रही है, तो बहुत बाजार रिलैक्सिंग हुआ. तो यहाँ पे जस्ट हम लोग मस्त छाँव में बैठे हुए, लहरों का मीठा सुर सुन रहे हैं, हवाओं का झोंका, उसका मजा ले रहे हैं, और कुछ पुरानी गपशप चालू है. सो 2 hours वेल स्पेंट ओवर हियर. बहुत मजा आया. 2 से 4 पर आवर 100 रुपीज है यहाँ बैठने का. This is so cold. ये मालूम ही नहीं पड़ा. I had a beautiful nap here. पता ही नहीं चला आँख तो बंद हो रही थी, फिर मैंने लेंस निकाले और अच्छे से आराम कर लिया. बहुत मजा आया. I'm so refreshed now. तो ये अपना LAP का लाइट हाउस, ब्यूटीफुल. अराउंड 100 to 150 स्टेप्स ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है. चढ़ के बताता हूँ बाद में. एंड यहाँ से आपको पूरा का पूरा LAP एकदम मस्त साफ नज़र आएगा. All 360 degree we can see it from here. 20 rupees per person. And just see the beautiful blue clouds. So ऐसे आपको चलते जाना है in the zigzag manner. सांप सीढ़ी की जरा ऊपर चढ़ते जाइए and enjoy the ride. So now the final countdown. Around 110 सीढ़ीज हैं. 16 स्टेप्स का एक स्टॉप है छोटा, एंड चढ़ते जाइए 6 बार, और थोड़ी फिर 10-12 सीढ़ीज, और यहाँ पे 4-5. सो फाइनली विल बी ऑन द टॉप ऑफ दिस ब्यूटीफुल लाइट हाउस. Golden hour. Look at the shine on Piyush's face. So this is the view. Samp is in the beach. Just 100 meters from this Niche railway track. ऐसा लग रहा है जैसे DNA के स्ट्रैंड पे धीरे धीरे उतर रहे हैं. उन्होंने मस्त एग्जाम्पल दिए. डबल स्ट्रैंडेड, सिंगल स्ट्रैंडेड RNA. सो अभी हमने ये स्टॉप लिया है रेवी करुणाकरन मेमोरियल म्यूज़ियम में, विच इज़ आई फील वेरी एक्सक्लूसिव एंड टॉप क्लास म्यूज़ियम है. यहाँ पर उन्होंने 3 जनरेशन के जो कलेक्टिबल्स हैं वो रखे हुए हैं टू सी एंड हैव अ लुक एट इट. और ये मेमोरियल बेटी करुणाकरन ने बनाया है अपने हस्बैंड की लविंग मेमोरी में. और जैसे कहते हैं ना कि ताज महल
बनाया था मुमताज़ की याद में। तो बेटी रेवी करुणाकरन ने अपने हस्बैंड की लविंग मेमोरी में ये बनाया है। और एक्सक्लूसिव कलेक्शन है, स्टार्टिंग फ्रॉम आइवरी, सिल्वर, वुड, एंटिक तांजोर पेंटिंग इन गोल्ड, वुड पर पेंटिंग्स है, लेदर पर पेंटिंग्स है, बहुत सारी चीज़ें। स्वरोस्की का एक अलग सेक्शन है, बहुत सारे कलेक्टिबल्स ओवर ऑल अराउंड द वर्ल्ड से लिए हुए हैं। बहुत सीइंग इट, photography not allowed, that's why we are doing this information session from here, and per person 200 rupees का fee रखा हुआ है। Have a look at it, please do stop by. So now we are in the LEP beach. सनसेट देखने के लिए आए हैं। थोड़े से बादल छाए हुए हैं, बट आई थिंक सनसेट दिखेगा। क्लाउड्स आर सो ब्यूटीफुल ओवर हियर। देखते हैं क्लाउड्स का कलर कैसा चेंज होता है। And this is Alipi Beach for you. This is the scene after sunset. So beautiful sky, dramatic, ekdam lovely, so beautiful. What do you say? मस्त दिन गया पूरा। Yeah. Today we had done 2 different beaches, and both of them have their own beauty. मजा आ गया। Yeah. थक गए हैं बहुत। फिर कॉफी और केले की पकौड़ी खाएंगे तो फ्रेश हो जाएंगे। Orampuri. Look at the sky. So beautiful, man. I'm in love with it. नागराज टेम्पल का जो आपका बाहर का पार्ट है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि अंदर वीडियो अलाउड नहीं है। सो यहाँ पे जिनको भी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम है, बच्चा नहीं हो सकता है, सो इट इज़ बिंग कंसिडर्ड कि यहाँ पे अगर आप दुआ मांगते हैं, पूजा करते हैं, तो आपकी इच्छा पूरी होती है। काफ़ी यहाँ पे ऐसे केसेस आए हुए हैं जिनकी इच्छा पूरी हुई है। सो दिस इज़ इन आउटस्कर्ट ऑफ एलिपी, जहाँ पे आप आ सकते हैं, अराउंड 8 to 10 किलोमीटर्स अवे। टाइम टू से गुड बाय टू एलिपी। 3 nights 4 days वर ऑसम। और हमारे मेमोरी के बॉक्स में एक और खूबसूरत चैप्टर केरला से जुड़ गया है। सो लेट्स सी द फेवरेट स्पॉट्स और फेवरेट प्लेस एट एलिपी। भावना से शुरू करते हैं। Everything is so beautiful, बहुत ही सुंदर है। You can see the beautiful सीनरी आउटसाइड ऑफ रूम से स्टार्ट होते हुए बहुत सारी जगह हमने घूमी है, बट लेकिन एक फेवरेट स्पॉट ही बोला है पीयूष ने, तो इट्स डिफिकल्ट टू चूज, एंड मे बी हमारा दोनों का सेम ही है, बट आई विल टेक अनदर पिक। ब्यूटिफुल टाइम स्पेंड एट टावर लाइट हाउस, 360 डिग्री व्यू, एकदम ब्रेथ टेकिंग था, एंड वी कुड sit there for a long time and chat and मस्त हवा ली, ट्रेन पास होते हुए देखा, सनसेट ऑलमोस्ट होने को आया था और हम भाग गए बीच पर। What about you? सो माई फेवरेट इज बैक वाटर, क्योंकि लाइफ में फर्स्ट टाइम किया था, बकेट लिस्ट में था, एंड इट वॉज 3 hours to 4 hours यूनिक थिंग, जहाँ पे द हाउस बोट वॉज गोइंग from different places. Village was there, then this paddy field was there, so many beautiful birds we have seen, black currant, white currant, and of course the scenery, मतलब postcard style था पूरा का पूरा। So I think that was wonderful, which you can see it in our video. ये मेरा भी बहुत ही फेवरेट स्पॉट रहा है। Bye, see you now in our next vlog. Please take care of your parents and Hakuna Matata. Don't worry, be happy.